हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 फूड। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक देयर फूड एंड ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, all we are dependent on plants for their food. All living organisms like plant, animals, human beings, we all need food for survive and growth. फूड हमें एनर्जी देता है जिससे हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। फूड हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। फूड हमें फिट और हेल्दी रखता है। फूड इज द मेन सोर्स बाय विच वी गेट मैनी न्यूट्रिएंट्स टू कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। Now, what are the source of our food? All human beings यानी कि हम सबको plants और animals से food मिलता है, यानी कि we are dependent for our food on plants and animals, right? It means plants and animals are two sources for our food. First of all, we will learn about food from plant and food from animals. We get the food from plants and animals. We have two sources of food which are plants and animals. और उसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 1, ये हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स के बारे में। तो हमें जो है फूड्स प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। हमारे पास दो सोर्सेज हैं फूड को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। Which type of food we get from the plants? We get cereal grains. We get different kind of grains from plants like wheat, rice, oat, corn, barley, maize, millet यानी कि ज्वार and बाजरा. They are important source of energy. They constitute the major components of our foods. It means grains are the main components of our foods. Grains are the rich source of mineral, vitamins and carbohydrates. Grains give us lots of energy. They are the main source of energy. After the grains, we will get the pulses from the plant. We also get the pulses from the plants. There are different types of pulses we get from the plants, like green grams यानी कि मूंग, ग्राम यानी कि चना, ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द, किडनी बीन्स यानी कि राजमा, स्प्लिट रेड ग्राम्स अरहर, रेड लेंटिल मसूर एंड सोयाबीन यानी कि भातमा are some of the important source of protein in our body, in our diet. Pulses provide protein and fibers to our body as well as a significant source of vitamins and minerals like iron, zinc and magnesium. We also get fruits from the plants. We all love eating fruits like mango, apple, banana, orange, watermelon, melon are the good sources of nutrients. Now we also get the green leafy vegetables like spinach, mustard, fenugreek and many other vegetables like radish, ladyfinger, turnip, carrot, brinjal and potato are all obtained from the plants. Green leafy vegetables are very important for our health. They are the source of vitamins, minerals, fiber, but low in calories. With regular consumption of green vegetables, we protect ourselves from many diseases. We also use oils. आप सभी को पता होगा हम अपनी
फूड में ऑयल्स का कितना यूज़ करते हैं, लाइक मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल टू कुक आवर फूड. These oil are also obtained from plants and are the source of fat. Okay? तो ये ऑयल्स हमें फैट देते हैं, पर हमारे ये ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि फैट जो होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर फैट जो है एक कंट्रोल लेवल तक ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है. जब एक लेवल के बाद हमारी बॉडी में फैट होना शुरू हो जाता है कलेक्ट, देन इट विल बी डेंजरस टू अस. सो कोई भी चीज़ हो वो हमें एक लेवल तक ही हमें कंज्यूम करनी चाहिए. Now next which will we get from the plants are spices. Spices like cumin, जीरा, turmeric यानी कि हल्दी, black pepper यानी कि काली मिर्च, cardamom यानी कि इलायची, chili, carom seeds, cloves are all spices. Give flavors to our food and make it tasty. इसके अलावा ये जो spices हैं like जीरा, क्लोव, अजवाइन, इलायची, ये सब हमारे खाने को टेस्टी तो बनाती ही हैं, इसके फ्लेवर देती हैं हमारे फूड को. इसके अलावा इन सभी स्पाइसेस का यूज़ इन एज अ मेडिसिन भी किया जाता है. ओके, तो ये सब चीज़ें हमें प्लांट से हम पाते हैं. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स की. जो फूड हमें एनिमल से मिलते हैं वो किस टाइप के होते हैं. नाउ एनिमल आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड. वी गेट द फॉलोइंग फूड आइटम्स फ्रॉम द एनिमल्स. फर्स्ट इज मिल्क. मिल्क आप सबको पता है कितना इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे फूड में उसको शामिल करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मिल्क को एक कंप्लीट फूड कहा गया. जैसे हम एक थाली लगाते हैं जिसमें हम सब्जी, रोटी, सब 2-3 तरह की सब्जी होती है और साथ में सैलेड होता है, सब कुछ होता है ना, ताकि हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल सके. इस तरह से मिल्क को भी एक कंप्लीट फूड कहा गया है. उसके मिल्क से हमें हर टाइप्स के विटामिन एंड मिनरल्स, हमें हर तरह के जो विटामिन मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं. नाउ सो मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. देखिए, मिल्क इज़ कंसिडर्ड अ कंप्लीट फूड, राइट. मिल्क गिविंग एनिमल्स जो हमें दूध देते हैं उनको मिल्क एनिमल कहते हैं. काउ एंड बफेलो आर द 2 मेन मिल्क एनिमल एंड गोट्स एंड कैमल आल्सो गिव अस मिल्क. बट मेनली हम जिस 2 एनिमल्स का मिल्क जो पीते हैं वो है काउ एंड बफेलो. ओके, नाउ नेक्स्ट फूड जो हमें एनिमल से मिलता है वो है एग. हैन, डक, फॉल्स ले एग्स. अंडे देती हैं. दीज बर्ड आर नोन एज पोल्ट्री बर्ड्स. जिन पक्षियों के जिन बर्ड्स के एग खाने में यूज़ किए जाते हैं तो उन बर्ड्स को हम पोल्ट्री बर्ड्स कहते हैं. Their eggs are rich source of protein and vitamins and are eaten by many of us. मतलब कुछ लोग खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो कुछ लोग अंडे खाते हैं, बहुत से लोग अंडे नहीं खाते हैं. बट एग्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा एक रिच सोर्स होता है प्रोटीन एंड विटामिन का. तो उनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन एंड विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी रहते हैं. Now, next is meat. Fish, goat, sheep, pig and chicken are important source of meat. यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किसके मीट्स खा सकते हैं, लाइक फिश के खा लेते हैं, गोट, शिप, पिग, चिकन. ठीक है, इनके जो मीट होता है वो खाया जा सकता है. लाइक एंड प्रॉन्स, क्रैब, शिम्स constitute the seafoods. All these are good source of protein. Okay. तो चलिए, ये हमारा टॉपिक हो गया फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स. नाउ अब हम करेंगे एक्टिविटी 1. तो चलिए, यहाँ पर हमें कुछ फूड आइटम्स के नाम दिए हुए हैं विद इमेजेस.
तो यहाँ हमें नीचे की तरफ 2 कॉलम दिए हैं, जिसमें एक में लिखा है फूड फ्रॉम प्लांट, एक में लिखा है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो हमें इन जितने भी हमें फूड प्रोडक्ट्स दिए हैं उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर लिस्टेड करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे देखिए, फर्स्ट इज एप्पल। तो ये क्या है? फूड फ्रॉम प्लांट। तो हम फूड फ्रॉम प्लांट की कैटेगरी में हम लिखेंगे एप्पल। एंड देन एग है, वेट एक सेकेंड, ओके ठीक है। नाउ एग इज अ फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो यहाँ इसको हम यहाँ लिख देंगे। ओके, नाउ चीज, चीज इज फूड फ्रॉम प्लांट या फिर फूड फ्रॉम एनिमल। ये हम मिल्क से बनता है चीज, तो ये होगा फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको। नाउ नट्स, नट्स आर फूड फ्रॉम plants. Then now spices, spices are also food from plant. Pulses, pulses भी food from plant. Okay, now honey, honey as you know that honey जो है honey bees बनाती हैं, they collect nectar from the flower, तो and they make a beehive in which they live and store the nectar collected from the flower as honey. So ये जो है हनी वो आएगा फूड फ्रॉम प्लांट्स के कैटेगरी में। ठीक है, तो हनी जो है हनी बीज बनाती हैं, बट विद द यूजेस ऑफ नेक्टर, जो है फ्लावर्स जो होता है उसमें से नेक्टर लेकर के फिर उससे वो हनी बनाती है। तो ये कहाँ किसकी कैटेगरी में आएगा? फूड फ्रॉम प्लांट्स। एक तरह से हमें प्लांट्स ही हनी देते हैं, सो हनी आएगा फूड फ्रॉम प्लांट्स में। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं। देन मिल्क, मिल्क इज वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। देन योगर्ट, योगर्ट जो यानी कि दही, वो मिल्क से बनती है। देन आइसक्रीम, आइसक्रीम इज आल्सो मेड बाय milk. And then wheat and rice, wheat and rice are the category of food from plant. Then rice. तो चलिए आज की क्लास यहीं तक करेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।